Namaskar, everyone. Uh, this is the lecture series on theory of errors, and this is part 3. And I, Rachna Upadhyay, lecturer, Lakshmi Institute of Technology, Sarigam, welcome you all. So, just for your quick revision, we have already done with the different types of errors, that is mistakes, accidental errors, and systematic errors. So in this particular chapter, that is theory of errors, we'll deal with accidental errors only. Further, we had also referred to some basic definitions, that is independent quantity, dependent quantity, true quantity, observed quantity, true value, most probable value, residual error. So we had also seen that the accidental errors depend on a particular law. So it depends on a particular mathematical law, and we came to a conclusion that it depends on the probability curve as shown. Then next, in the previous lecture, we proved the theory of least squares, that is general principle of least squares, and according to that, the most probable value of any particular given quantities was seemed to be equal to the sum of squares of residual errors came out to be minimum. Then we went to different 6 to 7 different laws of weight, and then we completed our last lecture at this particular point, that is rules for assigning weight. So we had completed up to this topic, that is rule for assigning weights. Now today we'll further move with one subtopic, that is determination of probable error. So before determining any particular value, we'll learn first how to determine the probable error. Now for this, the determination of probable error, we have some following cases. That is case 1, that is direct observation of equal weight on a single unknown quantity. Means के हमारे पास क्वांटिटी है बहुत सारी, जैसे कोई एक एंगल हमने ले लिया, उसको हमने मेजर किया है और उसका वेट इक्वल है, उन सब के वेट इक्वल है. हमने 6-7 अलग अलग एंगल्स लिए हैं एक ही एंगल को. जैसे कि अगर हमने एंगल ए लिया है तो वो एक ही एंगल लिया है लेकिन अलग अलग बार लिया है, लेट अस से कि 5 टाइम्स लिया है, पर सबका वेट इक्वल है. तो ऐसे केस में कैसा होता है कि PE मतलब प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट, मतलब सबका यूनिट 1 है, एक वो हो गया. फिर दूसरा है कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट W, मतलब सबका वेट कोई अलग अलग हो, किसी का 2, 2, 2, 3, 3, 3 वैसा. And then the probable error of single arithmetic mean. So we'll see them one by one. So let us start with the case 1, that is direct observation of equal weight on a single unknown quantity. Now we know that if observations on a single quantity are made with equal weights, so most probable value will be equal to the arithmetic mean. ये हमने आगे लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि अगर हमने कोई एक ही क्वांटिटी है, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई एक ही एंगल है, एंगल ए, उसको मैंने 5 बार मेजर किया और सबके वेट इक्वल है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की जो है वो किसके इक्वल होगा? अरिथमेटिक मीन से, मतलब डिवाइडेड, एड एवरीथिंग एंड डिवाइडेड बाय द सम. सो नोइंग दिस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हम रेसिडुअल एरर भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? रेसिडुअल एरर इक्वल्स टू क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो पहला क्या है कि प्रोबेबल एरर ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट. तो इसका बिल्कुल पिछली बार जैसे कि लेक्चर 1 में हमने देखा था, पार्ट 1 में, कि इसको हम ES बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 रूट सिग्मा V² अपॉन n-1. तो इसके
regarding we had also discussed one numerical based on this, so that is near less same only, where sigma v square, that is nothing but equal to the v1 square plus v2 square plus v3 square up till vn square, and v is our residual error in this case, whereas n is the number of observations. Second thing, that is probable error of single observation of weight w. मतलब अगर वेट यूनिट वेट मतलब 1 नहीं हो और उसके जगह पे 2, 3 या कुछ और हो, तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट. मतलब यूनिट वेट के लिए जो प्रोबेबल एरर आया है वो, उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट अंडर रूट वेट से. सो इट इज इक्वल टू ई एस अपॉन अंडर रूट डब्ल्यू. देन नेक्स्ट इट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ द अरिथमेटिक मीन. तो ये भी हमने देखा था कि दैट इज इक्वल टू ई एम, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस 1. सो इसको हम लोग किसके इक्वल बोल सकते हैं, इसको इक्वल बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई एस अपॉन रूट एन. सो आई थिंक सो दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन पार्ट 1 lecture. So and we had also solved one numerical based on this. So we'll move with case 2, that is कि अगर अनइक्वल वेट हो हमारे ऑब्जर्वेशंस के तो क्या होगा. सो इसके लिए एक बात देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो जिसके वेट अनइक्वल है, मतलब किसी के 2 है, किसी के 3, किसी का 5, किसी का 4, तो ऐसे केस में हमें क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. एंड दिस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज. तो सबसे पहले हम ये टर्म को समझेंगे कि व्हाट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन. सो हम पहले से जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या कहता है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिडुअल एरर्स टू बी मिनिमम. सो लेट अस टेक दैट v1, v2, v3 है, वो हमारी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज़ है और इनके वेट्स w1, w2, w3 है. तो अगर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से देखें तो इनके जो रेसिडुअल एरर्स का स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए. मतलब w1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस w2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस w3 इंटू v3 स्क्वायर अप टिल wn इंटू vn स्क्वायर, दैट मस्ट बी अ मिनिमम. यहाँ पे हमने w1, w2 और w3 से क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि सबका वेट अलग है. ओके, इसीलिए हमें वेट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है. और जो ये स्मॉल v1, स्मॉल v2 वो सब क्या है, वो सारा रेसिडुअल एरर्स है. वेयर एज कैपिटल v1, कैपिटल v2, दोज आर व्हाट, दोज आर आवर ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज. सो लेट अस से दैट n is our most probable value. So in this case what happens, that is residual error is what, it is the difference between the most probable value and the observed quantities. तो हमारी probable value क्या है, n, और हमारे ऑब्जर्वेशंस कौन से, v1, v2, v3, कैपिटल v1, v2, v3. तो उसके बेसिस पे हमारे रेसिडुअल एरर क्या हो जाएंगे, स्मॉल v1 इक्वल्स टू n माइनस कैपिटल v1. सिमिलरली ये जो स्मॉल v2 एंड स्मॉल v3 दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू n माइनस कैपिटल v2 एंड n माइनस कैपिटल v3 respectively. So if we want to find the most probable if we want to find the weighted arithmetic mean, so how we will find, that is ये जो v1 की वैल्यू है, स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल v3, इसको हम वापस से ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला, दैट इज w1 इंटू v1 क्या था हमारा, स्मॉल v1 n माइनस कैपिटल v1 और उस पर स्क्वायर है, तो ये वैसा हो जाएगा, प्लस w इंटू n माइनस v2 होल स्क्वायर प्लस w3 इंटू n माइनस v3 स्क्वायर प्लस wn n माइनस vn स्क्वायर. अभी ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए.
तो मिनिमम होने के बाद हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की जो इक्वल है वो किससे इक्वल है, वेटेड अरिथमेटिक मीन से। तो कैसे फाइंड करेंगे कि पहले वाले इक्वेशन से, मतलब ये वाले इक्वेशन से हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू W1 इंटू कैपिटल V1 प्लस W2 इंटू कैपिटल V2 प्लस W3 इंटू कैपिटल V3 अप टिल Wn इंटू कैपिटल Vn होल डिवाइडेड बाय, मीन्स इन सबका डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट्स, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टिल Wn. So this is equal to what? This is equal to the most probable value and that is nothing but equal to the weighted arithmetic mean. So यही वैल्यू, ये जो इक्वेशन है उसी को हम weighted arithmetic mean भी बोलेंगे और probable error भी बोलेंगे. So what does this prove? That this proves the proposition that the most probable value of the observed quantity that is equal to the weighted arithmetic mean of the observed quantities. So this is what we have first understand. हमने पहले ये समझा है कि weighted arithmetic mean क्या होता है. So this is the value of the weighted arithmetic mean. ऐसे फाइंड करते हैं. So इसके जो अलग अलग केस है वो हम ऐसे देखेंगे. दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट. तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, दैट इज इक्वल टू ES, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट सिग्मा WV² अपॉन n माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू द आवर केस 1. ए वाला वापस से वही केस है, लेकिन इसमें ये देखिए यहाँ पे पहले सिग्मा V² था, उसी जगह पे सिग्मा W इंटू V² हो गया. सो दिस इज द डिफरेंस. देन द नेक्स्ट दैट इज प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट W. तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट अपॉन अंडर रूट वेट, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ES अपॉन रूट W. So that is equal to plus or minus 0.6745 under root sigma WV² upon W into n minus 1. So try to relate this with case 1. ये ऑलमोस्ट सिर्फ इसी का फ़र्क है, सिर्फ वैल्यू W's का ही फ़र्क है, और else it is near mostly about same. Then next C case, that is probable error of computed probable error of weighted arithmetic mean, and that is equal to plus or minus 0.6745 under root sigma WV² upon sigma W into n minus 1. So we'll try to understand this thing with help of one numerical, one sum we'll try to understand, and with the help of this we'll try to understand this concept. दैट इज़ व्हाट के ऑलरेडी जो केस 1 है, जैसे कि जिसमें सारे वेट्स इक्वल है, तो वो केस का जो न्यूमेरिकल था दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1. सो इन दिस टाइम दैट इज दिस इज पार्ट 3. सो यहाँ पे हम लोग केस 2 का जो है जिसमें वेट्स अनइक्वल है, तो उसका एक सम देखेंगे. तो ये देखिए कि हमें फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट, probable error of weighted arithmetic mean and probable error of single observation of weight 3. ये सारे वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं और हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया है कौन सा, ये वाला एंगल 40 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड, उसका वेट 2. देन सिमिलरली फॉर 18 सेकेंड्स वी हैव वेट 2 एंड फॉर 19 सेकेंड्स वी हैव वेट 3. सो इसमें क्या है 2, 2 एंड 3. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अनइक्वल वेट. तो इसीलिए हमें केस 2 के फॉर्मूला से उसे सॉल्व करना पड़ेगा. सो एज दिस आर हैविंग डिफरेंट वेट्स, व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन. सो वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें
ऐसे सोल्यूशन करना है कि ये हमारे पास जो है दिस इज गिवन टू अस, सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करना है कि सारे एंगल और मिनट सेम है, डिफरेंस किस में है, सिर्फ सेकंड्स में, 20 सेकंड्स, 18 सेकंड्स और 19 सेकंड्स। तो वही वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी गई है, 20, 18 एंड 19। उसके वेट रिस्पेक्टिवली बाजू के कॉलम में लिखे। फिर व्हाट वी हैव डन दैट वी हैव मल्टीप्लाइड, मतलब 20 इंटू 2 दैट इज 40, 18 इंटू 2 36 एंड 19 इंटू 3 दैट इज 57। इन सबको ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें 19 मिलेगा। देन v is whatever it is residual error, so this 20 minus 19 that is 1, then 18 minus 19 that is -1 and 19 minus 19 that is 0। तो वो हो गया हमारा v। और v स्क्वायर क्या करना है, ये 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऑल्सो 1, 0 स्क्वायर 0 एंड देन फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ wv स्क्वायर। सो क्या करेंगे, उसमें वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू 1 दैट इज अगेन 2 एंड 3 इंटू 0 दैट इज 0। सो ऐसे पूरा ये हमने कॉलम प्रिपेयर कर लिया और फिर इन सब का समेशन करेंगे। तो सिग्मा wv स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 4। अभी हम वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। वो कैसे करना है, वापस से एंगल एंड minutes are same, the difference is only in second। so what will do, 20 into 2 plus 18 into 2 plus 19 into 3 that is whole divided by 2 plus 2 plus 3। तो ये कैलकुलेशन, ये देखिए आप, ये टेबल में क्लियरली आपको दिखेगा। तो हमें पता चलेगा कि 40 plus 36 plus 57 that is divided by 7 and that is equal to 133 seconds by 7 that is equal to 19 seconds। so इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है, बाकी v1, v2 और v3 की वैल्यू ऐसे फाइंड की है। then next we'll find out the observations, that is observation of single probable error of single observation of unit weight that is ES। तो फॉर्मूला से वही प्लस और माइनस 0.6745 रूट सिग्मा wv स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो सिग्मा wv स्क्वायर क्या था, इसकी वैल्यू 4। सो दैट इज 0.6745 इंटू रूट 4 अपॉन, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 3। ये देखिए हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है, 3 ऑब्जर्वेशंस है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, सो 3 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.95। देन सिमिलरली द प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट सिग्मा wv स्क्वायर अपॉन सिग्मा w इंटू n माइनस 1। तो ये हो गया कि प्रोबेबल एरर किसका, वेटेड अरिथमेटिक मीन का। तो फॉर्मूलाज हमने सारे केस 2 के ही लगाए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वॉट एवर द formulas are for case 1, then similarly you can relate it with the case 2 also। then next is probable error of single observation of weight 3। तो इसका क्या है, ES upon root W। तो ES upon root W मतलब probable error of single observation का कितना आया था हमारे पास 0.95 upon root 3, तो प्लस और माइनस 0.55। so I hope okay, this case 2 is also clear to you। so we'll just see with the distribution of error in the field measurements। now whenever the observations are made in the field, बहुत ज़रूरी हो जाता है that we check them and exactly we check the closing error also। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई ट्रावर्स किया है and that is equal to we know के वो सारे एंगल्स का हमेशा सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। और अगर वो 360 नहीं होता है तो व्हाट वी डू कि उसके जो एरर्स है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस में। अगर हमने 4 एंगल्स लिए हैं तो चारों में वो एरर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, तो दोज शुड बी अप्लाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स। एंड व्हाट आर दे, लेट अस सी देम वन बाय वन।
The first one is that is the correction which is to be applied to an observation that is inversely proportional to the weight of the observation. मतलब अगर जैसे कि करेक्शन है 1 सेकेंड तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली उसके वेट से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. Then second one, that is the correction to be applied to an observation is directly proportional to the square of the probable error. So this is according to the principle of least squares only. So this is nothing new. And the last one, that is that in case of line of levels, the correction to be applied is proportional to the length. So this also we had seen last time while while going to the topic of rules for assigning the weights. उसमें भी यही था कि जब हम लाइन में लेवल्स की लाइंस में फाइंड करते हैं तो करेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. So next time we shall see some numericals which are based on this error of the field measurements. तो हम ये टॉपिक पे numericals solve करेंगे. So we stop at this particular point and further we'll go with some numericals based on this. So till then, thank you and stay safe and stay at home.